5, of which we have actually done the paper 1. If you guys have done it, very good. If you guys have not done it, I'm sharing a link here. Okay, this is the part 1. I'm sure you'll be able to find the part 2 also when you will click on this channel. This is a YouTube live. This was a YouTube live actually. So इसमें हमने क्या किया था? हमने paper 1 solve किया था. But today what we are going to do? Today we are going to do. One second. Yeah, but today what we are going to do? Today we are going to do part 2, which is psychology, and I assume that you guys have studied well. And let's see what it is and how the paper come और कैसी कैसी चीजें होती है. This is what we have to do in this, right? Clear? Just give me a thumbs up, guys. So if you want, I can give a poll. If you want, you can write in the comment section. Just let me know what is more suitable to you. ठीक है? And if you're writing on your notebook, best, but just keep a track of your score. And it's good if you will tell me the score after your class so that I can tell you that, वो कैसे होगा. ठीक है? हाँ. Yeah, we can do a poll also. That's totally fine with me as well. Yeah, that can be done. Okay, guys, let's go. So we will start with question number 1. Okay, so you guys can catch up the paper 1 wala part if you have not in the YouTube. I have already shared and it's in the comment section. मैंने pin कर दिया. Right. So first question was match the column which has some concept followed by the name of a psychologist. Try to do it as quick as possible. Try to do it like you are giving your exam. ठीक है? Try to make smart guesses. Right. I have launched the poll. Let me know if you can see that. If you're not able to see, I think side में एक 6 dots का option आता है. वहाँ पे click करके you can see the live poll. And the poll which is live, you can see that. ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे because we have a lot of questions to do. Good evening, Lochan. I hope you are doing good. Yeah, I can see the answers. I can see the answers as answers are coming up in the poll. So I guess you guys have found out. Okay. So we'll do it quick, okay, so that we can complete this on time. We'll try to pace up. Okay. Okay. Let's see what it is. Actually, most of you got it correct. Classical conditioning, of course, was given by Ivan Pavlov. Nonsense syllables पे काम किया था किसने? एबिंगहाउस ने. उन्होंने खुद से ही चीजें लर्न करी और फिर डिसाइड किया कि फॉरगेटिंग कैसे हो रही है. ठीक है. उसके बाद मैजिकल नंबर जो 5 प्लस माइनस वो थे जीए मिलर के. लॉ ऑफ एक्विजिशन किसने दिया था? गथरी ने दिया था. जस्ट टू रिमाइंड यू, आई हैव रिटन हियर आल्सो. गथरी ने 1 ट्रायल लर्निंग दी थी. उन्होंने कहा था कि सिंपली एक चीज से कनेक्ट होती है और आपको एक बारी में चीजें लर्न हो जाती हैं. मतलब आप एक ही बारी में एक्विजिट कर लेते हो. तो वो बेसिकली आई थिंक या तो ऑल प्रिंसिपल फॉलो करता है या नन. या तो आपको याद होता है या आपको याद नहीं होता. दैट इज लॉ ऑफ एक्विजिशन. वेरी गुड. आई गेस मोस्ट ऑफ यू गॉट इट राइट. Question number 2 is basically the core principles of peace psychology in sequential manner. कुछ क्वेश्चंस मुझे थोड़े अटपटे लगे हैं इसमें, बट और किसी किसी के आंसर्स कीज भी गलत हैं, बट वी हैव टू. चेंज द क्वेश्चन नंबर, थोड़ा कन्वीनियंट कर लेते हैं. इसका भी जो आंसर है ना, इट इज नॉट समथिंग विच इट शुड बी, यू नो, बट ठीक है.
लेट मी नो. ओके. फाइन टू सी हाउ इज इट. ये कैसे बात कर रहा है? ये कह रहा है दैट सबसे पहले वी बेसिकली टॉक अबाउट द प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, कि हमें ह्यूमन राइट्स देने चाहिए. उसके बाद हम कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्यूट करते हैं और उसे रिकंसिलिएट करते हैं. आफ्टर दैट वी अंडरस्टैंड द साइकोलॉजिकल रूट्स ऑफ वायलेंस, कि वो हो क्यों रहा है. ठीक है, पहले तो हमने ह्यूमन राइट्स की बात करी, फिर उसके साइकोलॉजिकल डीप रूट्स को समझने की कोशिश करी, एंड आफ्टर दैट वी बिल्ड द कल्चर ऑफ पीस, विच गिव्स यू द सेकेंड ऑप्शन, जो अगर आप देखोगे अगर, तो आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे सीक्वेंस दिखेगा. बट आई थिंक यू कैन गो विथ व्हाट एनटीए हैज गिवन, बिकॉज वो अगली बार भी पॉसिबल चांसेस है कि वो इसी तरह से आंसर देंगे. राइट. ओके. Question number 53. A standardized test in psychology is consist of. This is actually a very, very easy question. हाँ, बहुत सिंपल है ये. इट्स वेरी सिंपल. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू गॉट इट करेक्ट. एक साइकोलॉजिकल टेस्ट में ऑप्शन हमारे पास दो ही हैं, तो ऑफ कोर्स रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी इज द मस्ट थिंग जो होनी चाहिए. सो ए एंड बी. वेरी गुड. Question number 54. Proteins that bind to DNA and influence the extent to which genes are expressed, known as what? ये थोड़ा सा ज्यादा बायो वाला क्वेश्चन आ गया है, बट यू कैन ट्राई. ओके ओके, या गेस करो, ठीक है. सो बेसिकली इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स. होता क्या है, मतलब जो बायो पढ़े उन्हें ज्यादा पता होगा, जो डीएनए सीक्वेंस होता है प्रॉपरली, उसमें बेसिकली हमारे पास कुछ ट्रांसक्रिप्शर्स होते हैं. वो डिसाइड करते हैं कि कोई भी जो चीज है वो इन्फ्लुएंस कैसे होगी, मतलब कम होगी, ज्यादा होगी या नहीं होगी. कोई भी पर्टिकुलर जीन ऑन होगा या ऑफ होगा, दैट डे डिसाइड्स. एंड वो ऑफकोर्स प्रोटीन से बने होते हैं, वो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है. दे आर नोन एज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, कि कोई भी चीज ट्रांसक्रिप्ट कैसे हो रही है. आप उस तरह से गेस कर सकते हैं, बट ऑफकोर्स इतना आसान नहीं है इफ यू डू नॉट नो. बट ट्रांसक्रिप्शन करने का मतलब क्या होता है, उसका मीनिंग या उसका कुछ ना कुछ उसका सेंस निकालना. दिस इज हाउ यू कैन नो दैट दिस इज द आंसर. राइट. सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 55. ऑफकोर्स वेरी इजी. अकॉर्डिंग टू मैस्लो आपको बताना है द नीड्स. हाँ, एक्चुअली इसमें यू कैन नॉट इवन गिव अनदर चांस. दिस इज समथिंग आपको सबसे पहले चाहिए, दैट इज योर फिजियोलॉजिकल नीड. ठीक है. एक और चीज है गाइस, कभी भी ना अपने एग्जाम में आप एक्सपेक्टेशन लेके मत जाना, बायसनेस लेके मत जाना कि क्वेश्चन यही आया होगा. क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है. ठीक है. तो जब आप क्वेश्चन पढ़ो, मैं हमेशा कहती हूँ क्वेश्चन हमेशा विदाउट एनी बायसनेस पढ़ो, और क्वेश्चन हमेशा 2 बार पढ़ो. मैंने रिसेंटली एक रील और एक शॉर्ट वीडियो भी डाली थी अपने इंस्टा और यूट्यूब पे. उसमें एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हुए, बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, बट आप उसे पढ़ लेना. दैट विल हेल्प यू अ लॉट. आपको क्वेश्चंस को 2 बार पढ़ना है विदाउट बायसनेस. कई बार क्या होता है, हम एक बार पढ़ते हैं और हमारे मन में एक इमेज बनती है, हम दूसरी बार भी सेम चीज को पढ़ लेते हैं और हम रियलाइज नहीं करते हैं. तो प्लीज इसको ध्यान देना व्हेन यू आर डूइंग एग्जाम. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको बिल्कुल, कहते हैं ना, एक ऐसा क्वालिटेटिव रिसर्चर बनना है कि जिसमें आपकी खुद की कोई बायसनेस ना हो. राइट. ओके. स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज व्हाट? ये भी वैसे सिंपल है. आई जस्ट लॉन्च द पोल फॉर दिस.
सोचो गाइस, इतना मुश्किल नहीं है ये, डोंट गिव मी द रॉन्ग आंसर्स। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, आप समझ रहे हो, आपके पास एक पॉपुलेशन होती है, जो एक एक्चुअल पॉपुलेशन होती है, उसमें से आप एक सैंपल निकालते हो, और उस सैंपल का अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हो, दैट विल बी नथिंग बट योर सैम्पलिंग एरर, कि आपके पॉपुलेशन और आपके सैंपल के बीच में जो डिफरेंस आया है उसे हम स्टैंडर्ड एरर या सैंपल एरर कहते हैं। दैट मीन्स दैट सैंपल स्टैटिस्टिक्स कितना फ्लक्चुएट करता है आपके पॉपुलेशन पैरामीटर से, कि आपकी पॉपुलेशन जैसी थी उससे आपका जो दूसरी वाली चीज है वो कितनी डिफरेंट है। आप प्लीज, जिसको भी डाउट है, प्लीज रेज योर हैंड एंड लेट मी नो द डाउट्स एट दैट टाइम ओनली, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता लगेगा कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं, बट जस्ट लेट मी नो। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको पेपर में 10% क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो बहुत ज्यादा आसान होंगे। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल, जस्ट थिंकिंग अबाउट व्हाट यू आर थिंकिंग इज नथिंग बट मेटाकॉग्निशन। वेरी गुड, वेरी गुड। Yeah, question number 28 is, which model of attention suggests that information is filtered based on physical characteristic? इसको अगर आप गलत दे रहे हो, that means what you are studying, guys. देखो, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक यानी सेंसरी, मैंने हालांकि सारे मॉडल्स के बारे में यहाँ पे लिख दिया है। ट्रीजमैन बेसिकली क्या कहते थे, उन्होंने अटेनुएशन की बात करी थी, कि थोड़ा सा ऐसा होता है कि कोई चीज रह जाती है, जैसे आपका नाम या कोई आपके लिए पर्सनल चीज हो तो उस पर आप ध्यान दे देते हो। ब्रॉडबैंड फिल्टर थ्योरी कहती है कि ये चीज अगर इस बॉटल नेक के आगे फिल्टर होगी वो आगे नहीं जाएगी, और दैट इज बेसिकली ऑन द सेंसरी इनपुट विच यू टेक। तो उसमें फिजिकली नहीं, ऑडिटरी या कोई भी सिग्नल आ सकते हैं, वो सेंसरी होता है, ठीक है। ड्यूटिस्ट का जो मॉडल था, लेट सिलेक्शन मॉडल, वो बेसिकली ये कहता है कि यू एक्चुअली, यू नो, लाइक ऑल द इनकमिंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड इवन बिफोर द सिलेक्शन, उसके बाद आप डिसाइड करते हो आपको क्या करना है क्या नहीं। एंड कामेन का कैपेसिटी मॉडल कहता है कि इट इज अ लिमिटेड पूल ऑफ मेंटल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द टास्क, और हमें वो देखना होता है कि अच्छा ठीक है, ये किसको हमने कितना टाइम दिया है, ठीक है। बहुत जरूरी है गाइज आपके लिए कि आप यू नो इस चीज को समझो कि जो भी ऑप्शंस हैं आपको वो पढ़ के जाने हैं, बिकॉज दैट कुड बी द क्वेश्चन इन योर नेक्स्ट एग्जाम, राइट। Question number 59 is, which of the followings are the form of learning? 59, yes. Take your time and let me know. ओके गाइस, सो इसका जो आंसर की है वो गलत थी, और वो चेंज भी नहीं हुई है बाद में। आंसर जो दिया है वो थर्ड ऑप्शन दिया है, जो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, बट ऑफ कोर्स इसका आंसर थर्ड नहीं है। क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एंड हैबिचुएशन शुड बी द करेक्ट आंसर। जेनेटिक इनहेरिटेंस ऑफ कोर्स लर्निंग नहीं है, बिकॉज यू आर बोर्न विद इट एंड यू हैव डन नथिंग टू डू दैट, राइट। बट इसका आंसर गलत है, तो ठीक है, इट्स फाइन, बट आई होप यू नो दिस, करेक्ट? क्लियर? क्लियर। चलो, क्वेश्चन नंबर 60, सॉरी, you have theories followed by the definition to that. Actually, I just before the class 10 minutes before, I got to know that Jamia ka list aa gaya hai. So I am getting messages. So I was little disturbed at that time. तो अभी भी people are messaging about that क्योंकि जामिया के candidate list आ चुकी है, final selection list. So if anybody have you
applied. You guys can check if your name is there. हो गया? Done? Okay, only 2 answers on this. हाँ, नहीं, जामिया बिगेन RCI का डिप्लोमा काउंसलिंग, नॉट द MA. अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है. दिस इज नॉट इन माय नॉलेज. ओके गाइज, लेट्स सी. मैस्लो की हायरार्की नीड ऑफ कोर्स किस बारे में बात करती है? दैट हायर नीड से पहले पुराने नीड्स फुलफिल होने चाहिए. ठीक है. मैक्लेलेंस की एक्वायर नीड थ्योरी, थ्योरी ऑफ अचीवमेंट, और वो तीनों तरह की उन्होंने थ्योरीज की बात करी थी. अफिलिएशन एंड पावर, यस. हर्सबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी टॉक्स अबाउट हाइजीन फैक्टर्स एंड मोटिवेशन फैक्टर्स की क्या जरूरी है फॉर जस्ट नॉट सेटिस्फाइंग, एंड क्या मोटिवेटर्स हैं फॉर बीइंग सेटिस्फाइड, राइट. फिर आता है सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, जो कि रेयान एंड डेसी की थी. उन्होंने कहा था कि मोटिवेशन इंट्रिंसिक फैक्टर्स से आता है. Very good. Who got this correct? Answer 4 is the correct option. Yes. Question number 61 is, which of the followings are the law of learning? क्या है 61? Wait guys, I am putting up the poll. People like waking up and chalo, let's join the class. Is that okay? हाँ, ये बहुत simple है. So anybody wants to tell me who gave these laws? Anybody wants to name? Ma'am, Thorndike. Yeah, very good. Thorndike gave these law of effect, law of exercise, and law of readiness, which later took up by the Skinner and talked about reinforcement. So it gives you A, D, and E, which is the 4th option. Very good. Who got this correct? Let's move on. People who are giving the wrong answers, please. Effect होता है. Effect is that whatever you are doing, what you will get in return. What is the effect of your being coming in the class? What is the effect that if you do not do your homework, तो क्या होगा? डांट पड़ेगी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. That is your reinforcement. This is the law which was taken by B.F. Skinner and made it a reinforcement law. And this is how उनकी theory आई. Understood? Oh, I have written name also. Question number 62. Epileptic seizures can be a consequence of what? Epileptic seizures के क्या क्या reasons हो सकते हैं? ये भी बहुत मतलब बहुत ऑब्वियस आंसर है. इवन इफ यू जस्ट गिव इट अ गेस, या तो आपको हेड ट्रॉमा हो गया है या फिर आपका ब्रेन ट्यूमर है. बिकॉज नोज रनिंग एंड आई फ्लू लिटरली हैज नथिंग टू डू विद एपिलेप्टिक सीजर. एपिलेप्टिक सीजर होते क्या है जनरली? It's basically a sudden or a abnormal excessive electrical discharge in the brain that causes temporary change in the behavior, consciousness, movement, sensation, or emotion. Right? Very good. Question number 63 is a match the column. Okay. It is from a biology unit. It's easy though. Okay, getting answers so quick. Synaptic plasticity क्या होती है? Synaptic plasticity is when your body, मतलब synaptic plasticity बेसिकली synapse के लिए होती है. बट अगर आप देखोगे तो ये सेम चीज न्यूरॉन्स या ब्रेन के लिए भी होती है, न्यूरोप्लास्टिसिटी, जहां पे हम ये बोलते हैं कि न्यूरो कनेक्शंस जो है वो बदल सकते हैं, अडेप्ट हो सकते हैं. तो एक्चुअली वही चीज है कि यहाँ से आपको आंसर कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगा. देन आपका है लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन. लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन क्या होता है कि बार बार स्टिमुलेशन की वजह से, जैसे हम कहते हैं ना बार बार लर्न करो, बार बार रीड करो, तो बार बार वो जो कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं फिजिकली.
मतलब फिजिकली साइनैप्स और क्लोज होते जाते हैं और पोटेंशिएशन की वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस वहां बनाते हैं, एनएमडीए, एएमटीपी, एएमपीटी। क्या है गाइस, जस्ट करेक्ट मी बिकॉज आई नो ये गलत है दूसरा वाला। ये सारे रिसेप्टर्स वहां पे रिलीज होते हैं, राइट? ओके, फिर आता है न्यूरोट्रांसमिटर्स। न्यूरोट्रांसमिटर्स बेसिकली क्या होते हैं? कुछ केमिकल मैसेंजर्स हैं जो न्यूरॉन्स के बीच, एएमडीए, थैंक यू लोचन, या ये होता है, ठीक है। उसके बाद न्यूरोजेनेसिस का मतलब होता है, जेनेसिस मतलब जनरेशन होता है, जनरेट करना होता है, न्यूरोजेनेसिस मतलब न्यू न्यूरॉन्स की जहां पे ग्रोथ होती है इन द सर्टेन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, व्हिच गिव्स यू ऑप्शन 1 एज द करेक्ट आंसर। ओके, वेरी गुड, हु गॉट दिस राइट? क्वेश्चन नंबर 64. Okay, easy question. Mnemonics works to improve memory. I've launched the poll, I guess. Question number 64, yes. Oh, mixed answers. Come on, guys, read the options carefully. Also, I don't know, but you sit for the exam, you should be able to think like NTA. Okay? Yeah. एक बात बताओ मुझे, मतलब it's not about that what you have studied or not. How you can choose option 1 as an answer, that rote processing improves memory automatically? Do you really think rote memory से आप learn कर सकते हैं चीजें बहुत लंबे समय तक? And it's saying automatically. Talking about mnemonics, guys. Mnemonics, of course, it active organization and integration improves memory. क्योंकि आप क्या कर रहे हो? आप actively कुछ ना कुछ mnemonics बना रहे हो, कुछ words connect कर रहे हो, कुछ integrate कर रहे हो. Right. Right, right, right. Question number 65. Arrange the sequence of the central nervous system. Now, this is a question which needs to be taken care of. This is question number. Oh, I'm so sorry. नहीं, ठीक है, ठीक है. Oh, I will tell you. I got few correct answers. I will tell you क्या है इसका. ठीक है. आंसर क्या दिया है आप लोगों ने? I've got 1, 2, 4 every answer. ठीक है, ठीक है, ठीक है. हाँ, नहीं, गेस नहीं मारो, पढ़ लो क्योंकि इस पे क्वेश्चंस मुझे दिख रहे हैं. सो इट्स मतलब इट्स टाइम दैट यू लर्न दिस. 65 का जो आंसर है वो तो सेकंड है, जिसने भी दिया है वो तुक्का जिसका भी था वो सही हो गया, ठीक है. बट इसका आप आंसर देख लो क्या है. इट इज लाइक दिस, दैट सबसे पहले यू हैव अ स्कल और अ क्रेनियल बोन विच इज योर आउटसाइड वाला थिंग, देन यू हैव अ एपिड्यूरल स्पेस, ठीक है. उसके बाद यू हैव अ ड्यूरामेटर. ड्यूरामेटर में दो लेयर्स हैं. आउटर लेयर है पेरियोस्टियल और दूसरी जो उसके अंदर वाली लेयर है वो है मेनिंजियल लेयर. ओके. फिर आपका सबड्यूरल स्पेस, देन एरेक्नॉइड मैटर, सब एरेक्नॉइड स्पेस, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड पाया मैटर. लर्न कर लो. मुझे पता है कि नए मोमेंट पे बहुत नए टॉपिक्स नहीं करने चाहिए, बट आई हैव सीन इसका एक और क्वेश्चन है इसमें, तो इट इज सजेस्टेबल दैट यू लर्न दिस. ठीक है, अभी तो बहुत टाइम है, 10 दिन है, आराम से आप एक आधा दिन बैठ के भी इसे लर्न करने बैठोगे, कोई ना कोई निमोनिक बनाओगे. आई एम श्योर यू विल बी एबल टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर दिस, राइट? करेक्ट. Okay, guys. Question number 63. Oh, sorry, 66. Which of the following is true about factor analysis? I have launched the poll. You can mark your answers. मानसी, वो किस हो सकता है एकदम सामने ना आ रहे हो, साइड में ना टूल्स का एक ऑप्शन होगा या 9 डॉट्स वाला ऑप्शन होगा, वहां पे आप क्लिक करोगे ना तो आपको दिखाई देगा पोल्स, एंड देन यू कैन सी द एक्टिव पोल्स. वो एकदम सामने आके शायद हट जाते हैं इसलिए दिखते नहीं है किसी किसी को. ओके, इसमें भी मुझे मिक्स्ड आंसर्स आई एम गेटिंग. Okay, see, so factor extraction is stopped when eigenvalue becomes less than 1.
फैक्टर एक्सट्रैक्शन वहां रुक जाता है जहां पे ईगन वैल्यू 1 से कम होती है, राइट? उस फैक्टर को आप नहीं लेते हो। देन इट इज एन इंटरडिपेंडेंट स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पे मुझे पता है कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। इट इज ट्रू, व्हाई? बिकॉज हम ये कहते हैं वेरिएबल्स ना तो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे पे, ना वेरिएबल्स डिपेंडेंट वेरिएबल है या कुछ है। एवरी वेरिएबल इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, सो दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, राइट? सो दिस इज करेक्ट। देन इट इज अ नॉन पैरामेट्रिक एनालिसिस, ऑफ कोर्स नॉट। ठीक है, वही मैं बोलती हूँ, हमेशा ऑप्शंस एलिमिनेशन से करो। सो इवन इफ यू एलिमिनेट 6 यू विल समवट बी क्लोज टू योर आंसर, क्योंकि फैक्टर एनालिसिस एक पैरामेट्रिक टेस्ट है एंड दिस इज द short थिंग which we know about it, right? And option number D, which is scree plot can be used to determine the number of factor extracted. Yes, we use eigenvalue, we use scree plot की elbow के नीचे वाले numbers को we discard or something like this. So you have A, B and D, correct? I'm very proud of you who got this correct. Question number 67. The most recent reported evolutionary development of the brain convergence has two main regions. ये थोड़ा सा अगर आपको नहीं आता ना, you can do a guesswork also in this, even if you do not know the answer. और तो जरूरी नहीं है कि guesswork हमेशा काम करे, बट फिर भी करना है। उन सारे बच्चों को बोल रही हूँ जो बच्चे गेट लिख रहे हैं, गाइज नेट इज नॉट लाइक गेट, इट्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो प्लीज जो भी ऑप्शन समझ में आ रहा है, चाहे उसे रिव्यू के लिए मार्क कर दो, बट ब्लैंक मत छोड़ो, कुछ ना कुछ उसमें मार्क करके छोड़ो, बिकॉज कुछ नहीं से तो कम से कम कुछ तो मिल ही सकते हैं मार्क्स, है ना? तो प्लीज डोंट लीव द क्वेश्चंस। देखो गाइज, ऐसे कॉमन सेंस से हम ये करेंगे कि भाई डॉर्सल और वेंट्रल पोर्शंस जो इधर उधर के होते हैं, ऐसे तो ये तो रीजन्स हैं, डॉर्सल वेंट्रल तो ब्रेन में कहीं भी हो सकते, तो इट इज नॉट समथिंग इवोल्यूशनरी डेवलप्ड। वी हैव गायरी एंड सल्की, आई विल शो यू हाउ दे लुक लाइक। आई हैव मेड इट लाइक दिस। ये होते हैं गायरस एंड सल्कस, जो बेसिकली क्या करते हैं, उसका एरिया बढ़ाते हैं, the ridges or the folds of the brain, which basically increase the surface area of the cerebral cortex, right? So fourth is the correct option, whoever got this right. Clear? Done, Priyanshu? Chalo. Question number 68. The basal ganglia structures dominate the entire motor function of whom? ये भी बहुत simple है, and even if you do not know, you can do a very good guesswork in this. तो देखो क्या होता है, जनरली ह्यूमंस एंड एलिफेंट्स जो है वो मैमल्स कैटेगरी में आते हैं, तो अगर ह्यूमंस होगा तो दूसरा भी होगा, बट हमें दो ही ऑप्शंस चूज करने हैं। सो दैट्स व्हाई वी हैव, मतलब दिस इज अ तुक्का, ओके, दिस इज नॉट द आंसर ऑफ कोर्स, कि ऐसे आप यूज कर सकते हो अपना गेस वर्क। सो यू हैव बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स व्हिच यूज टोटली द एंटायर फंक्शन ऑन द बेसल गैंग्लिया, जबकि हम में ऐसा नहीं होता है। वी हैव सो मेनी फर्दर structures to handle that, right? We have cerebellum, we have so many other things. Right. Question number 69. The assumption that everything happens in the universe can be accounted for by definite laws of causation is called what? Question number 69. Quickly, guys, quickly tell me. Somebody has selected 4 also, but no, this is, guys, determinism. Yes, because every caused behavior has some cause to it, or every behavior has a cause to it. So this is what it believes in. Okay, determinism, that we are born with that thing, we have that reason to be like that. तो उसको हम इसमें काउंट करते हैं। वेरी गुड, कोई बात नहीं, इट्स ओके, अगली बार गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 70. सिसी, natural monism होता है which basically believes that there is only one, there is no mind, no body, there is only one thing. See what they have very cleverly done, they have actually added 2-3 laws altogether.
and given it in one question as an MCQ, as a MCQ. Okay, okay. सब लोग करो आंसर, then I'll tell you the answers. 2, 3, 4. Very mixed answers I'm getting. Also, just to mention you that the level of difficulty of this paper was not very difficult, guys. So you can expect a higher, well, I think, like higher marks on this paper. ठीक है, लेट्स सी व्हाट द आंसर इज. वेबर्स लॉ किसके बारे में बात करता है? वेबर्स लॉ का जो फॉर्मूला है वो बेसिकली होता है दैट आई थिंक just noticeable difference is proportional to the original stimulus, which is delta I by I equals to something. And Fechner's लिखा है, ये स्पेलिंग गलत है. Fechner's law का फॉर्मूला होता है कि लॉगरिथमिक फंक्शन ना k logs s वाला फॉर्मूला है. एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड मतलब क्या होता है कि बिल्कुल मुझे वो डिटेक्ट हो जाना चाहिए, बस द मिनिमम इंटेंसिटी विच इज रिक्वायर्ड टू जस्ट सी दैट स्टिमुलस. And just noticeable difference, and I'm able to tell between two glasses of like sweet water that this is more sweeter than the other one. So this is what this is just noticeable difference. So I have actually added the formulas. ये है आपका फॉर्मूला वेबर का और ये है आपका फेक्नोस का. अगर नहीं याद है just revise it, brush up कर लो उसको. Done. Then you have question number 71, which is not a health protective behavior. Okay. So it's basically what? Avoid getting chilled, get enough sleep, eat as you like. Of course, eat as you like. Na? This is not a healthy behavior. हमको तो हमेशा पिज्जा, बर्गर ये सब खाने का मन करेगा, but you cannot have it, so which is not healthy. Question number 72 is match the column. Although some people don't like it, so no offenses to that, but in general हमेशा हमारा वही मन करता है, which is not good for our health. वेट गाइज, मेरे को लगता है किसी किसी ने उस वाले में इसका आंसर दे दिया है. आई विल जस्ट लॉन्च द पोल अगेन फॉर 72 क्वेश्चन. हाँ, इस पे करो, इस पे करो आंसर. We have some terms followed by the definition of them. ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं नेट में. ओके, सो व्हाट डज इट सेज? सोशल परसुएशन का मतलब होता है, एक्चुअली ये थोड़ा सा मैच कम कर रहा है, बट लेट्स जस्ट स्टार्ट विथ फिजियोलॉजिकल अराउजल. फिजियोलॉजिकल अराउजल का मतलब होता है सेंस ऑफ एंजाइटी एंड फॉरबिडिंग. इज दैट सो? यस, क्योंकि फिजियोलॉजिकली आप अराउज कर रहे हो तो एंजाइटी आ रही है. मास्टरी एक्सपीरियंस होता है कि आपने पास सक्सेस एंड फेलियर इन द सिमिलर सिचुएशन एज परसीव बाय द इंडिविजुअल. ठीक है, कि आपने पूरा एक्सपीरियंस किया है उसको. वाइकेरियस एक्सपीरियंस होता है दूसरों को देख के सीखना. और सोशल पर्सुएशन बचा कि आपने सोशली ट्रस्टेड बिहेवियर से अंडरस्टैंड किया कि इसका आंसर ये होना चाहिए या ये ऐसा होना चाहिए. तो सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन. वेरी गुड टू दोज हु गॉट इट राइट. Chalo, let's talk about question number 73. According to Buddhist perspective, which of the following represent the cognitive aspect of personality?
Oh, very much correct answers. So इसमें क्या आंसर है? इसका आंसर बेसिकली, एक मिनट देखने दो पहले, करेक्ट है भी या मैंने बोल दिया ऐसे? हाँ नहीं, करेक्ट है। ठीक है, इसका आंसर है सना। बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव में है। बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव में बेसिकली हमारे पास 5 एग्रीगेट्स हैं जो स्कंद बनते हैं। रूप इज द मैटर और द फॉर्म, वेदना इज द सेंसेशन ऑफ द फीलिंग, सना इज द परसेप्शन और द कॉग्निशन पार्ट बेसिकली। ठीक है, संस्कार इज अ मेंटल फॉर्मेशन और वाइडेशंस, एंड विज्ञान इज अ कॉन्शियसनेस और द अवेयरनेस व्हिच वी हैव. So guys, I can see some people are writing on like this only. So if that's okay, we can just do in the comment section, because I think it's taking time if to launch a poll so that we can finish early. Like if you guys say, otherwise it's fine. If you guys are okay, I am okay with that. Question number 74. I don't think so any question can be like easy than this question in the world. You literally get this question in CUET UG, CUET PG, GATE, and NET. That's why I always say, no matter what exam preparation you are doing, you should always do the previous year questions of any paper. Because I have seen how people make questions. They actually take reference from the different papers. Yes, Ayushi. मैम यू रिमेम्बर जब हमने इसका PYQ किया था 9th यूनिट का, तो उसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आया था मैस्लो का, कि देयर इज अ पर्सन, उसने फ्लैट लिया है। हाँ तो हाँ हाँ वो भी अच्छा था, क्वेश्चन अच्छा था वो हाँ, भी। वो I remember. I think so. ठीक है guys, so you guys are writing in the comment section. That is actually fine for me as well, so that we will be in a track. तो वैसा भी होता है, बट ये क्वेश्चंस भी अभी भी पेपर में आ रहे हैं. ओके, सो इट्स वेरी सिंपल. यू फर्स्ट हैज अ फिजियोलॉजिकल, देन यू हैव सेफ्टी, लव एंड बिलोंगिंगनेस, एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. ऑफ कोर्स थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन. वेरी गुड, हु गॉट दिस राइट. Question number, question number 75. We want to be like that because they are successful and have a positive status. Explains what? Guess करो. Guys, just because social media is on hype, you cannot choose social media as an answer, okay? Yeah. नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है. देखो बेसिकली क्या है दैट, मतलब वो लोग सक्सेसफुल हैं, उनका पॉजिटिव स्टेटस है, राइट? तो दैट इज नथिंग बट अ सोशल कॉम्पिटिशन. नो, it's social competition. I have actually added for everything. Social cognitive domain was given by this person, which proposed that children develop the moral understanding through distinct domains, right? Social bond theory created by Tarvis says that people conform to social norms because of 4 types of bonds. ठीक है? Attachment to others, commitment to the conventional goals, involvement in the conventional activities. Then if I talk about social media hypothesis, that is generally the various hypotheses about social media affect the behavior, cognition, and well-being as a displacement hypothesis, or the social comparison hypothesis also. But social competition is basically the social hierarchies and competition for status, resource, mates, and drives. Of course, ये छोटी छोटी लाइन लिखी हुई है. You guys can go and just give it a read. इसमें आपको कुछ रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, बस एक बार देखना पड़ेगा. ठीक है? Clear? Okay. I hope it's okay. Question number 76. According to Taittiriya Upanishad, okay, Jeev is a multi-layered entity. Arrange those layers in order. तो मैं आपको बताती हूँ. आई थिंक आपने अगर करें तो आपको पता होगा. एक पेपर में ये भी आया था कि जीव की जो मल्टी लेयर एंटिटी है वो कौन से उपनिषद में मेंशन करी हुई है. इसमें उपनिषद मेंशन किया हुआ है, तो दे आर आस्किंग यू दिस सीरीज. ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी लाइक ऑब्वियस क्वेश्चन. ये जब से पेपर में मतलब इंट्रोड्यूस हुआ है, ये क्वेश्चन आ रहा है पेपर में. Yeah, tell me the answers quickly, then we'll move on and see. Yeah, very good. It is third option. Why? Because सबसे पहले अन्नमय कोश, ठीक है, just with the body, physique and everything. Then pranmay is for the breath. Then you have manomay is the cognition. Then vigyanmay is about knowledge. And anandamay is a blissful state, which is of course the highest stage. Very good. Question number 77 is asking, according to William Wundt, the analysis of consciousness is known as what? Consciousness या awareness.
विलियम वुंड के अकॉर्डिंग वो क्या था? एक्चुअली है, इज नोन एज व्हाट? यस यस, कंपैरेटिव साइकोलॉजी आई थिंक वो होती है व्हेन वी कंपेयर एनिमल्स एंड ह्यूमंस, इट इज लाइक दैट. एनालिटिकल, not exactly, but I think Carl Jung talked a bit about it. And individualistic psychology is Adler, right? Content psychology. Content मतलब उन्होंने किसकी बात करी थी? स्ट्रक्चर की बात करी थी ना, क्लियरली. तो इसीलिए. Okay. Question number 78. Which of the Eastern Western combinations about psychotherapeutic process are correct? मतलब ईस्टर्न वाली चीजों को वेस्टर्न के साथ कंपेयर कनेक्ट करना है. Hmm. देखो, आसन ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं होते हैं, इट्स अ पोस्चर. आसन होते हैं ना, व्रजासन, शवासन, सारे आसन इज अ पोस्चर. सो ए डेफिनेटली कुड नॉट बी द आंसर, राइट? विपासना इज अ माइंडफुल मेडिटेशन, यस. mana is a reflection, yes. Upayog is the use of something, that cannot be argumentation. So B, C, and E is the correct answer. Savasana is a progressive muscle relaxation, means you do it by, like slowly, gradually. Very good who got this correct. I have written here आसन is a physical posture and उपयोग is a use. बाकी तो सबका सही लिखा हुआ है, ठीक है? Correct? Give me a thumbs up quickly. Okay, guys. Question number 75. Which among the following components belong to psychological well-being? Okay. Psychological well-being अगर आप बात करते हो तो आप किस किस चीज को चूज करोगे? So of course आपको दो options eliminate करने हैं, which can be the least, suitable for the answer. Safety and security is clearly not the psychological wala thing. So B is not the answer, right? Cultural activities also nothing to do with psychology. Sense of self कि आपको self feel हो रहा है, sense of purpose you're feeling independence. Yes, very good. A, C, and D is the correct answer. Very good, guys. Question number 80. Dr. Upadhyay has carried out two-way ANOVA with intensity of light and font size as independent variables and visual acuity as the dependent variable. Which of the following are true? Again, only one option is wrong. तीन सही हैं इसमें. Okay, so two-way ANOVA is generally known as factorial design because हम उसमें factors का वो करते हैं कि ठीक है, इस intensity light में और इस font size में क्या है, इस वाले intensity light में इस font size में क्या है, तो you do the factors in something, एक किसी blocking type करते हैं, तो we call it a factor design, ठीक है? Interaction effect of course होगा because मेरे पास दो variables हैं A and B का. I'll be looking into that. Yes. Guys, don't do this. Independent variable कभी भी, मैंने पढ़ाया है क्लास में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कभी भी कॉन्टिन्यूअस नहीं होते हैं. ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कैरेक्टरिस्टिक है. इट हैज नथिंग टू डू विद एनोवा और एनीथिंग. हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस होता है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा या तो नेचुरली डाइकोटमस होते हैं या हम उसको डाइकोटमस बना देते हैं. यस और नो? वी विल टेक इंटेंसिटी ऑफ लाइट एज हाई, लो और मीडियम. वी विल टेक फॉन्ट साइज एट बिग और स्मॉल.
We will decide क्या big क्या small होगा, even if it's an artificial dichotomy, but we will give it as a dichotomy. This is wrong. Of course it's a causal effect. Why would it not be? अनोवा में हमेशा जनरली हम करते हैं, वी कॉल इट फॉर एक्सपेरिमेंट, या उसके लिए हम ही इस्तेमाल करते हैं. ये कोरिलेशन मेथड तो नहीं है दैट इट विल नॉट टॉक अबाउट कॉर्डियल एक्टिविटी और समथिंग. सो ए बी एंड डी, आई होप इट्स क्लियर. अगर नहीं है तो लेट मी नो. मैम Otherwise- एक बार सी वाला पार्ट बताना क्यों नहीं है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बेटा कॉन्टिन्यूस नहीं होते हैं. हाउ विल यू डिफाइन? यू विल से दैट ना कि गर्ल्स में इतना आया और बॉयज में इतना आया. यू विल से कि जो यूजी के बच्चे हैं उन्होंने ये किया, पीजी के बच्चों का ये मार्क्स आया. यू विल से कि जिन बच्चों की वेट ज्यादा है उनका ये रिस्पॉन्स आया, जिनका वेट कम है उनका ये आया, जिनका बीपी ज्यादा है उनका ये रिस्पॉन्स आया. यू विल ऑलवेज make group in independent variable. You will always have levels under the independent variable in ANOVA. You remember k क्या होता है ANOVA में? यस मैम. They are the levels. They cannot be the continuous forms. Dependent variable हमेशा, मैंने कहा कि independent and dependent variable का ये characteristic है कि वो continuous में होते हैं और वो हमेशा मतलब discrete variables होंगे, right? Either naturally or artificially we have done it. I hope it's clear with everybody. Yes ma'am. Great. Question number 81 is, an organism's observable traits are referred to as what? Organism के जो observable traits होते हैं which you can see from outside, वो क्या होते हैं? Yes, जीनोटाइप इज अ जेनेटिक्स, जो आपका अंदर है कि आपको एक्स वाई है, या आपका कैपिटल पी स्मॉल पी है, कैपिटल एच स्मॉल एच है, या कैपिटल बी है, दैट इज जीनोटाइप. जो दिखता है वो फिनोटाइप है विच इज फिजिकल. करेक्ट? नहीं गाइज, ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स, ओ गाइज नो, यू आर कंफ्यूजिंग. डोमिनेंट ट्रेट्स आर दोज ट्रेट विच यू नो okay, the people who are asking dominant trait, who are saying dominant trait, मुझे एक बात बताओ, क्या recessive trait किसी में नहीं दिखते हैं? Don't you see recessive trait in individual? क्या कोई recessive trait के साथ बर्थ नहीं करता, लेता है, born नहीं होता है? होता है ना, of course they can also be observable, right? Brown hairs, anything that for that matter, any particular disease, any particular trait. Dominant trait बस ये होते हैं कि even if it is coming from one parent, they will show up. But of course, that's not the case in recessive trait. They should have the trait from both of the things. But recessive trait भी तो होते हैं ना. Yes, you have black eyes, brown eyes. So brown eyes, if they are, recessive, ऐसा नहीं है that people do not born with that. People do not born with the brown hair, as Ayushi just mentioned. So वो चीजें तो होंगी of course, right? तो ये ऐसे tricky नहीं था ये, but चलो ठीक है. Question number 82, a common logical error that people make is to seek information that support their ideas rather than the evidence that would invalidate those ideas. The error is called what? सरल भाषा में बताऊं? आंसर देने दो फिर बताती हूँ लोगों. सरल भाषा में इसे कहते हैं कि भाई मुझे वही सुनना है जो मेरे आइडियाज को वैलिडेट करे, जो मुझे इनवैलिडेट करे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मतलब मैं उसको देखूंगी ही नहीं, लाइक इट डज नॉट मैटर फॉर मी व्हाट इट इज सेइंग. वेरी गुड. इट इज कॉन्फर्मेशन बायस कि जो मैंने देखा है, मैंने सुना, मुझे वही देखना है. वेरी गुड, वेरी गुड गाइज. नहीं आयुषी, यू आर स्टिल गुड. मीट लाइक बेबी बूमर्स, मिलियनेयर्स, कभी मिली नहीं हो उन लोगों से? लाइक आई एम नॉट, ऑफ कोर्स आई एम नॉट टारगेटिंग अ पॉपुलेशन, बट people are like that. People don't want to change. We are still way better. We want to change, we want to learn. Chalo, question number 83. Which domain of biopsychology studies the psychological effects of brain damage in human patients? Now, this question is interesting. Think very carefully. They have very smartly given the question. Okay. Physiological psychology होती है कि मेरे
फिजियोलॉजी का, मेरे बायोलॉजिकल ट्रेट्स का, मेरे साइकोलॉजी में, मेरी पर्सनल, कोई भी मेरी साइकी में क्या इम्पैक्ट है? दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस जो लोग चूज करें, कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस या कॉग्निटिव साइंस जो होती है वो बेसिकली ये बात करती है कि मेरे कॉग्निशंस कैसे काम करते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी चीजें कैसे काम करती है मेरे ब्रेन के अंदर, स्ट्रक्चर, वो सारी चीजें, और वो हमें कैसे साइंस से मैं उसे कनेक्ट कर सकती हूँ, जैसे कि एनीथिंग, इट इज टोटली बायोलॉजिकल। ठीक है, इट डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग विद साइकोलॉजी। न्यूरोसाइकोलॉजी टॉक्स अबाउट द साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ब्रेन डैमेज ऑन साइकोलॉजी। साइकोफिजियोलॉजी भी बेसिकली यही होती है कि साइकोलॉजिकल ट्रेट्स का इम्पैक्ट आपकी फिजियोलॉजी में कैसे होता है। So third is the correct answer, and I think half of you got it right. So very good who got this right. This is neuropsychology, क्योंकि न्यूरॉन्स का या ब्रेन्स का क्या इम्पैक्ट होता है साइकोलॉजी में, वो स्टडी करता है, राइट? बहुत थिन लाइन डिफरेंस है। आई थिंक दैट्स व्हाई दे हैव गिवन द क्वेश्चन। चलो, क्वेश्चन नंबर 84, अरेंज द फॉलोइंग इंटेलिजेंस टेस्ट अकॉर्डिंग टू देयर फर्स्ट इंट्रोडक्शन। अच्छा guys, so I have to like I am also like kind of like confused in this because इसका आंसर कुछ और है पेपर में। ठीक है, आंसर की में कुछ और आंसर है और मुझे नहीं पता कि वो क्यों है, बिकॉज इफ आई चेक द सोर्सेज आई डू नॉट फाइंड दैट, बट एनटीए हैज एक्सेप्टेड इट। आई एम श्योर किसी बुक में ये लिखा होगा, विच पीपल आर ऑल्सो गिविंग द आंसर। यस, पीपल आर सेइंग द थर्ड ऑप्शन। ठीक है, कि पहले आर्मी अल्फा आया, बीटा आया, क्योंकि लगता है कि वो पुराना है, और उसके बाद से बेने और वेस्टर का आया। बट आइडियली इफ यू सी, और जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा हुआ है सिंपल 30 आइटम टेस्ट, वो एक्चुअली 1905 में आया था, उसके हिसाब से ये फर्स्ट होना चाहिए, एंड देन दे शुड बी सेकंड, एंड ऑफ कोर्स वेस्टर सबसे लास्ट में है। तो आंसर मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए, बट आंसर की में आंसर 3 है। तो यू गाइस डिसाइड कि आपको अभी इसमें क्या ऑप्शन चूज कर, क्या। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि कोई एक ठीक ठाक सी बुक देख लो जिसमें इसका ईयर लिखा हो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की, ताकि आप उससे चैलेंज कर सको, उस हिसाब से आप कर सकते हो, राइट? राइट गाइस, चलो क्विकली, वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ मोर क्वेश्चंस। हाँ, क्वेश्चन नंबर 85, तन्मय इज अ स्कूल गोइंग गर्ल हेल्प्ड अ blind person crossing the road and felt happy to see smile on the blind person's face. This can be explained through what? हाँ, उसको कुछ नहीं है, उसको बस दूसरे को देख के अच्छा लग रहा है। इट इज एम्पैथी, जॉय। वेरी गुड, मोस्ट ऑफ यू गॉट इट राइट। Unlike Sigmund Freud, the humanistic psychology, Rogers and Maslow focused on the innate human motivation to achieve one's fullest potential, and that is known as what? Very simple. This is considered as a simple part of the paper. And remember, this do not decide your net or JRF. तो ये question आप गलत afford नहीं कर सकते हो। Are you understanding? इन क्वेश्चंस में गलती अफोर्ड नहीं कर सकते हो आप। हो जाती है तो कोई बात नहीं, इट्स फाइन। मैंने भी बहुत सिली क्वेश्चंस गलत किए हैं, बट स्टिल व्हेन यू गेट इट, यू गेट इट, राइट? या, एंड व्हेन यू क्लियर द एग्जाम, आई विल टेल यू, आप अगर एग्जाम क्लियर कर लेते हो ना, तभी भी आपको ये रेग्रेट रहता है कि यार ये क्वेश्चन गलत कर दिया, एक और मार्क्स आ सकते थे। सो दैट इज समथिंग वेरी, आई हैव फेल्ट इट, बिकॉज मेरे, आई थिंक, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, बस 242 या 244 ऐसे कुछ मार्क्स थे, और मैंने बहुत ही एक सिली क्वेश्चन गलत किया था। आई क्लियर JRF दो इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट, बट व्हेन आई गॉट द रिजल्ट्स आई थॉट यार 246 हो जाते, कितने अच्छे लगते दिखने में। सो दैट रेग्रेट विल बी विथ यू, बट अल्टीमेटली नोबडी केयर्स अबाउट दैट, एंड नोबडी लिसन्स, एंड नोबडी वांट्स टू। आई एम श्योर आप भी कहोगे क्या ही फर्क पड़ता है मैम, हो गया ना बस। बट जब आपका हो जाता है, देन आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, एज वी आर ऑफ कोर्स ग्रीडी। सो या, right, understood? So the answer is self-actualization. Very good. Question number 87, which of the following is correct sequence of group development? Bruce Tuckman की stages हैं, right? इस पे भी आपको question alternatively net में देखने को आराम से मिलेगा।
सो इसके ऑप्शंस आसान नहीं है, ये आप जल्दबाजी में नहीं कर सकते हो, ठीक है। हाँ, यू हैव नॉर्मिंग, फिर लड़ाई झगड़ा करेंगे स्टॉर्मिंग, नो नो नो, यू डोंट हैव नॉर्मिंग। हाउ यू कैन start with norming? You start with forming, then storming, then norming, then doing the actual work which is performing, and then adjourning is the called off कि हो गया काम अभी, fourth option. Very good. Question number 88. Which of the following is commonly identified sequence for characteristic of cyberbullying? सीक्वेंस का भी पता नहीं कैसे दिया है आंसर इन्होंने, बट ठीक है। Anybody wants to give a guess or they know it or what it is? ये है यूनिट नंबर 10, known as emerging areas in psychology. तो देखो इसका आंसर उन्होंने क्या दिया है, विच आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ, बट ओके। फर्स्ट दे आर सेइंग कि सबसे पहले डिप्रेशन और एंजाइटी का जो सिम्टम है वो बढ़ता है लोगों में, मतलब विक्टिम्स में ऑफ कोर्स, और एनोनिमिटी इन्वॉल्व्ड इन द परपेट्रेटर्स, जो काम कर रहे हैं उनको ऑफ कोर्स उनको नाम नहीं है, उनका कुछ नहीं है, वो पीछे छुपे हुए हैं, तो उनको और ज्यादा लगता है कि अब और एनोनिमिटी आ जाती है कि नहीं पता कौन कैसे कर रहा है, तो वो उस चीज से हो जाते हैं। इसके अलावा 24/7 एक्सेसिबिलिटी है, और हैरेसमेंट से वो भाग नहीं सकते हैं जो पर्सन है, और इसकी वजह से पोटेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। सो इफ आई हैव टू डू इट, आई ऑफ कोर्स चूज समथिंग बिटवीन 1 and 4, बिकॉज लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल ट्रॉमा सबसे लास्ट स्टेप होना चाहिए, तो मैं डी लास्ट में लेके कुछ ना कुछ करके आई कुड हैव मार्क्ड एनी ऑफ दीज टू, सो यू कैन डू समथिंग लाइक दिस, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 89. Oh, very interesting. Max Men Con principle in the context of research methodology denotes what? Very simple. Even if you do not know it, use the basic logic and try to give the answer. And very interesting also. So you want to maximize what? You want to maximize the सिस्टमैटिक वेरिएंस, है ना, कि आईवी की वजह से डीवी में डिपेंडेंट मेरे पास, मतलब वैल्यू आईवी का इम्पैक्ट डीवी पे मेरे पास ज्यादा आना चाहिए, सिस्टमैटिक वेरिएंस होना चाहिए। यू वांट टू मिनिमाइज द एरर वेरिएंस, एरर वेरिएंस जितना हो सके आपको कम करने की कोशिश करनी है। और जो कौन है विच इज कंट्रोल, आप किसे करते हो, एक्सट्रेनियस वेरिएबल को, क्योंकि वो वेरिएबल्स आपको कहीं ना कहीं पता होते हैं कि दे कैन हैव एन इम्पैक्ट, तो यू ट्राई टू कंट्रोल इट। जैसे कि पॉपुलेशन का आईक्यू है, टेम्परेचर है, एनीथिंग फॉर दैट मैटर, राइट। Option number 2. Very good. Question number 90. Which of the followings are goals of humanistic therapy? Humanistic therapy के क्या goals है? Of course, दो goals हैं, दो options eliminate करने हैं, दो choose करने हैं। सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाना और पर्सनल ग्रोथ को प्रमोट करना। कोपिंग स्किल्स आई थिंक हम उसमें करते हैं रियलिटी वाले में, या जो प्रॉब्लम ओरिएंटेड होता है, और इंटरपर्सनल ग्रोथ, इंटरपर्सनल इज लोगों के बीच में, ऐसा कुछ नहीं है। ह्यूमनिस्टिक में हम सिर्फ अपनी बात करते हैं। सो ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, हु गॉट दिस राइट। Question number 91. The James Lange theory and the Cannon-Bart theory differ in the relationship they assume between bodily arousal and emotion. They are saying which of the following matches is correct.
Also, because time is near, I would suggest that try practicing the questions from screen only, because CBT mode में होगा तो कई बार बच्चों की आंखें थक जाती हैं. So tell me guys, what should be the answer for this? No? मैम ये क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, डिमांड क्या कर रहा है, क्योंकि या तो फिर ऑप्शंस गलत हैं. क्यों है ऑप्शन गलत? क्वेश्चंस मतलब छोड़ो, ऑप्शन देखो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताओ. मैम कैनन बट थ्योरी वाली सही है. थर्ड वाली. सो थर्ड वाली सही है, बट अगेन इसका भी पेपर में आंसर गलत है. उन्होंने फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है विच इज क्लियरली नॉट ट्रू. यही ओके चीज, हाँ जी हाँ जी. हेलो 3 सही है. ओके, अंडरस्टूड गाइस. आंसर की में आंसर गलत है और ऐसा ही आया था, बट कोई नहीं, बात नहीं. आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द पीपल हु हैव स्टडीड वेल हैव लॉस्ट मार्क्स, तो इससे बहुत ज्यादा कट ऑफ में फर्क नहीं पड़ता है. बहुत मुश्किल क्वेश्चंस में जब ऐसा हो तो फर्क पड़ता है. ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, एवरीबडी वुड हैव चूज थर्ड ऑप्शन. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 92. वी हैव विच ऑफ द मैच द फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस विद द प्रोफेशन. ऑफ कोर्स गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस का थ्योरी है कि कौन से इंटेलिजेंस वाला होगा पर्सन तो वो कौन से पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन में जाएगा या प्रोफेशन में जाएगा. या नेचुरलिस्टिक वाले, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, स्पेशियल आर्किटेक्चर्स, लॉजिकल मैथमेटिकल, ऑफ कोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक वाले लोग. वैसे ज्यादा मैच नहीं कर रहा बट फिर भी लॉ. ओके, 3 is the correct option. Very good guys. What are some applications of personality assessment? Personality assessment के क्या applications हैं? Very good, very good. You clearly cannot do neurological diagnosis with that and developmental disorders. A and B is the correct answer. Very good. Question number 94. There are several schools of yoga. Which of the following represents some of those schools? You remember हमने किया था योगा के चार थे. कौन कौन से उसमें से हैं? You have to choose that. मतलब एक ही नहीं है एक्चुअली. या वेरी गुड. भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग. बी, सी एंड डी. सेकेंड ऑप्शन. वेरी गुड. Very good, guys. Question number 95 is match the following theories के साथ their psychologist who gave the theory. Even if you get one, you get the answer. We have studied also these theories. Even if you get the A1, you will get the answer. या थ्योरी ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट इन्फरेंस जो था वो जॉनसन डेविस ने दिया था कि कोई इंसान जब कुछ अलग, कुछ हटके, कुछ फ्रीली चूजन बिहेवियर करे तो पता चलता है. सो विच एक्चुअली गिव्स यू द आंसर. बैलेंस थ्योरी ऑफ लाइकिंग दी थी न्यूकॉम ने. कोवेरिएशन मॉडल था केली का. सोशल कंपैरिजन फेस्टिंगर ने दिया था, अपर एंड लोअर कंपैरिजन. न्यूकॉम का मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. हैदर की तरह ही सिमिलर थ्योरी थी, बस थोड़ा सा डिफरेंस था. उन्होंने ABX दिया था. And they say that people are attracted towards other who have a similar attitude, beliefs, or values. Okay? Done. Question number 96. In dash validity, the criterion measures are obtained approximately the same time in the test scores. Very simple. It is a type of criteria. They have given you the hint in the question.
नो गाइज, नो, दैट्स नॉट ट्रू. क्या मतलब, क्या ही आंसर. क्राइटेरियन मेजर अप्रोक्सीमेटली सेम टाइम में जो होता है दैट इज कंकरेंट. आई थिंक वन पर्सन हैज गिवन द करेक्ट आंसर. और जो फ्यूचर में होता है उसमें हम प्रिडिक्टिव करते हैं, राइट? अंडरस्टूड. अगर फ्यूचर टेस्ट का, जैसे मैं बोलूं कि अगर तुमने इस वाले में आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस अगर तुमने 80 सही करे हैं तो तुम्हारा नेट क्लियर हो जाएगा. ठीक है, ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग दैट, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. दैट इज अ प्रिडिक्टिव वैलिडिटी. बट अभी के अभी जो मैं टेस्ट ले रही हूँ दैट इज कंकरेंट वैलिडिटी. नो, यू गॉट ट्रिक्ड सो इजीली गाइस. कैसे चलेगा? Match the following. We have some test followed by the name of the person who made them. So quick. Test of intelligence अल्फ्रेड बिनेट ने स्टार्ट किया था. पर्सनल डेटा शीट जो सबसे पहला टेस्ट था वो रॉबर्ट वुडवर्थ ने दिया था. थेमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट मॉर्गन एंड मरे का है और मरे की नीड्स पे बेस्ड है. करियर बिलीफ इन्वेंट्री जो है वो क्रम्बोल्स ने दी थी, which actually gives you the fourth option. मैंने यहाँ पे क्रम्बोल्स का लिखा हुआ है कि उनका क्या था. वो ये देखते हैं कि करियर डिसीजन मेकिंग कंफ्यूजन तो नहीं है, आपको किस्मत पे भरोसा है या खुद पे, फियर ऑफ फेलियर कितना है, कितनी सर्टेनिटी चाहिए अपने करियर में, स्टीरियोटाइप क्या है किसी पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन को लेकर के, और खुद के बिलीफ क्या है कि मेरी खुद की कैपेबिलिटी क्या है काम करने की. तो इस ये करियर बिलीफ इन्वेंट्री इस्तेमाल होती है, राइट? और ये दी थी जॉन डी कॉम्बोल्स ने. ठीक है, रिवाइज कर लेना एक बार जाके दोबारा से सारी चीजें. Question number 98. Which of the following is a non-parametric counterpart of two-way ANOVA? Simple. Two-way ANOVA का non-parametric alternative क्या है? If you know, you know. There's no like option कि आप कुछ सोच सको. Two-way ANOVA का non-parametric counterpart. It's Friedman test. Yes, correct. Who got this right? Question number 99. Write the appropriate sequence for causes of forgetting. Okay. Causes of forgetting के appropriate sequence क्या हो सकता है? जिस सीक्वेंस पे हम भूल सकते हैं चीजें. वेरी गुड. सबसे पहले आप इनकोड ही नहीं किया, ये प्रॉब्लम हो सकती है. फिर कर लिया तो बहुत देर तक यूज नहीं किया, डिके हो गया, फिर इंटरफेरेंस हो गया, कोई और चीज याद करी, और सबसे लास्ट में आपका रिट्रीवल फेलियर कि याद नहीं आ रहा है क्या पढ़ा था. वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 100. अरेंज द सीक्वेंस ऑफ द मेमोरी प्रोसेस. मेमोरी प्रोसेस का सीक्वेंस क्या है? क्या दिया मैंने इसका आंसर? ए डी बी सी. करेक्ट गाइस. सॉरी आई गॉट कंफ्यूज्ड. ठीक है, बताओ. One way ANOVA is Kruskal Wallis. Yes, correct. And two way ANOVA is Friedman. Yes. Friedman is also the alternative for dependent ANOVA वाला. हाँ. मतलब हाँ, ठीक है, वही वही सेम चीज हो गई. हाँ, ठीक है. अब देखो,
एक्चुअली मेरे हिसाब से इसका आंसर ABCD होना चाहिए, बट ABCD कोई ऑप्शन नहीं है, तो उस केस में भी आप इसी ऑप्शन को चूज करेंगे, क्योंकि सबसे लास्ट में रिट्रीवल होगा, फिर उससे पहले आपने स्टोर किया होगा किसी चीज को। मेरे हिसाब से इनकोडिंग पहले होती है और परसेप्शन बाद में होता है, राइट? बट दे हैव रिटन की परसेप्शन पहले है और इनकोडिंग बाद में है, या तो मिस्टेक से हो गया या कुछ ऐसा है। सो यू कैन सी टू इट। Question number 101. When systematic desensitization is used to overcome a phobia, the desensitizing activities are what? Very simple. You must have read, so you must know this. हाँ, right. कोई random वैमडम कुछ नहीं है. They are doing it in a systematic procedure. धीरे धीरे करके वो बढ़ा रहे हैं उसको. ठीक है. Question number 102. In which of the following statistical analysis we have more than one dependent or outcome variable? Very simple, direct question. एक से ज्यादा डिपेंडेंट या आउटकम वेरिएबल्स किस में होते हैं? Yeah, it's MANOVA, multivariate analysis of variance. Very good. Question number 103. Past theory of intelligence does not include what? Once again. पास्ट थ्योरी में क्या नहीं होता है? अराउजल अटेंशन ऑफ कोर्स पास मॉडल का ए वही होता है. साइमल्टेनियस सक्सेसिव एस. प्लानिंग एंड सेल्फ मॉनिटरिंग पी. ये ऑटोनोमस सिस्टम, इसमें कुछ नहीं होता. वेरी गुड. Question number 104. Dash index is useful tool for identifying proportion of respondents giving correct response to an item. Guys, think before giving the answer. You have to identify that what proportion of respondents are giving the correct response to a particular item. Let's say this question only. 104 question को कितने proportion of बच्चों में से मेरी क्लास में 10 में से कितने बच्चों ने उस क्वेश्चन को सही किया? That is item difficulty. Guys, you cannot say item discrimination at this point of time जब 10 दिन में पेपर है. No. Please read. Question number 105. Which of the following is true about Patanjali Yoga Sutra? Take your time and let me know. Even if you do the elimination method, you will get the answer for this. आप करो, फिर मैं बताती हूँ कि कैसे करते हैं. नहीं, दोबारा आंसर करो. जिसका गलत हुआ है मैं उसे दूसरा चांस देती हूँ. Please use the elimination method. See, generally in the questions, if it is very much written like that, no, not, the answers are not right. वैसे भी आप देखो ना, कोई भी योग सूत्र, why it will not be relevant for psychological well-being? It will be. पहली बात तो not relevant लिखा है इस चीज के लिए, तो वो ऑप्शन जनरली गलत होते हैं. Of course not always, but उसके अलावा वो साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए क्यों नहीं होगा? वो है तभी तो इतना वाइड स्प्रेड हो रहा है ना योगा अभी.
It's not only about the physical but psychological also. So B is the totally wrong answer. And if you eliminate the B from the options, you automatically get the answer. आसन की प्रैक्टिस से पहले प्राणायाम आता है, ब्रेथ आती है, पहले ब्रेथ करते हैं फिर वो सब करते हैं. उसके बाद आपका नहीं, आसन प्रीसीड्स प्राणायाम, मतलब आसन पहले आते हैं, सॉरी, प्राणायाम बाद में आता है. इसमें 8 लिम्ब है, अष्टांग याद होंगे अगर किसी को, यम, नियम, प्रातिहारा, ये वाली चीजें. उसके बाद डेलीगेंट एंगेजमेंट में अगर हम करें तो हम केवल्य की तरफ जाते हैं, विच इज द एनलाइटनमेंट स्टेज. ऑफ कोर्स योग सूत्र न्याय सिस्टम पे बेस्ड नहीं है, ठीक है. तो अगर आपको ये नहीं भी आता है, इफ यू एलिमिनेट फ्रॉम दिस यू गेट द आंसर. सो यू हैव टू यूज दिस trick in exam to get the answers right? Question number 106, it talks about few definitions followed by the people have talked about it. देखो मैं बताती हूँ आंसर, थोड़ा सा ट्रिक है. डिस्क्रिमिनेटिव कंडीशनिंग की बात करी थी वॉटसन ने, बिकॉज वॉटसन ने कहा था कि वॉटसन ने एसआर स्टिमुलस की, मतलब उसकी बात करी थी कि हर स्टिमुलस के साथ एक रिस्पॉन्स कनेक्टेड होता है. तो डिस्क्रिमिनेटिव कंडीशनिंग की उन्होंने बात करी इन अ वे. उसके बाद अगर वी टॉक अबाउट ए परसेप्टिव मास, विच इज समथिंग विच इज ए परसेप्टिव, क्या होता है कि आप कोई चीज जो परसीव करते हो और मतलब करते हो या नहीं करते हो, उसका जो मीनिंग निकालते हो, अपनी मर्जी से निकालते हो, वो विलियम मूर ने कहा था. मुझे नहीं पता बट मैंने ये किसी क्लास में तो बताया था आपको, दैट परसेप्शन एंड ए परसेप्शन एक्चुअली वर्क्स फॉर दिस, बिकॉज मैंने ये हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी की किताब में पढ़ा है, ठीक है. मैंने शायद बताया होगा क्लास में, आई एम प्रीटी श्योर. फिर हम बात करते हैं अनकॉन्शियस इन्फेरेंस की. अनकॉन्शियस इन्फेरेंस होता है जो हेल्महोल्ट्ज ने दिया था, दैट वी आर टेकिंग इन्फेरेंस. फिर है लोकल साइंस. लोकल साइंस जो थे वो रडोल्फ लॉज ने दिए, विच इज समवट विच इज समथिंग विच इज इतना इजीली हो सकता है कि आपको नहीं पता होगा, क्योंकि जनरल सिलेबस में हम नहीं पढ़ते हैं, बट आई हैव रिटन हियर, ठीक है, कि हम कोई भी चीज अंडरस्टैंड कर रहे हैं एज अ टोटल पास्ट एक्सपीरियंस जो धीरे धीरे इन्फ्लुएंस हो रहा है. हेल्महोल्ट्ज ने अनकॉन्शियस इन्फ्लुएंस कहा, वी ऑटोमेटिकली इंटरप्रेट द सेंसरी इन्फॉर्मेशन विदाउट अवेयरनेस. हमें कई बार ऐसा भी होता है. रुडोल्फ लॉज ने एक्सप्लेन किए, लोकल साइंस इज अ स्पेसिफिक सेंसरी क्यूज विच हेल्प अस टू आइडेंटिफाई कि हमारा बॉडी का लोकेशन कहाँ पर है. फॉर एग्जाम्पल, आपको कहीं किसी चींटी ने, किसी भी मच्छर ने, किसी ने भी काटा अगर हाथ में, तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता चल पाती है. आपने आंखें बंद भी करी है, फाइल से कि राइट टच योर लेफ्ट आई, यू विल बी एबल टू टच योर लेफ्ट आई. सो ये वाली चीजें इन्होंने दी है. तो नहीं आती है कोई बात नहीं, यू कैन जस्ट गिव इट अ रीड वंस. मैं इसे हटा देती हूँ, आप इसे रीड कर लीजिएगा, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 107, द मून इल्यूजन इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय व्हाट. मून इल्यूजन को हम सबसे बेस्ट कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? या इट इज साइज डिस्टेंस स्केलिंग. होता क्या है, हॉराइजन्स पर, यानी सर के ऊपर एक अलग बात है, हॉराइजन्स होते हैं या हॉरिजन्स होते हैं बिल्कुल लाइट लास्ट में, वहां पे हमें मून जो है वो बड़ा दिखाई देता है. क्यों दिखाई देता है? क्योंकि साइज तो हमें सेम दिख रहा होता है, लेकिन हमको लगता है कि वो हमसे इतना दूर है, इतने सारे बिल्डिंग्स हैं, सारी चीजें, तो उस वजह से क्या होता है कि हमको मून बड़ा दिखाई देता है. सो मून इज परसीव्ड एज अ फादर अवे ड्यू टू डिस्टेंस क्यूज, सो द ब्रेन स्केल्स अप इट्स साइज. हमें लगता है कि वो बड़ा है, तो साइज और डिस्टेंस की वजह से वो हमें बड़ा दिखता है. Okay, very good. Question number 108. According to Miller, which are the types of internal conflict? Internal conflict की क्या types हैं according to Miller? I think मैंने ये recently CUET PG वाली क्लास में पढ़ाया है बच्चों को, ठीक है. So just the simplest explanation. Go for it. सबसे simplest explanation. Go for it and tell me. I'm sure it will be the correct answer. Quickly, guys. Simple वाला बस. Yeah, it's correct. Avoidance, approach, and approach avoidant. Very good. BEA is correct answer, जो बिल्कुल मैच करता है उससे. ये तो कर्ट लेविन ने दी थी ना वैसे तो. हाँ, आई नो बट मिलर ने उनको बताया है और नाम लिखा है. रिसेंटली भी ये CUET PG में मैंने पढ़ा है, तो आई नो दैट कि ये
उससे कनेक्टेड है, राइट? So he's also a social psychologist. आई डोंट नो अबाउट दैट बट ही टॉक्ड अबाउट दिस, या Okay. ये उनके नाम के साथ कनेक्टेड है और रिसेंटली पता नहीं क्यों एनटीएस पे से क्वेश्चन दे रहे हैं. Okay. 109 question. Cattell and Horn's theory postulates two kinds of intelligence. A person who is good at using and combining familiar facts will be high in what? सिंपल है गाइस, सिंपल. कटेल हॉर्न की थ्योरी में दो तरह के इंटेलिजेंस हैं. जो फैक्ट्स हैं उनको यूज एंड कंबाइन करने को हम क्या कहते हैं? वेरी गुड. इज नथिंग बट योर क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस. क्रिस्टल्स की तरह ऐड करते जाते हैं ना, हमने ये पढ़ा था ना. Very good. Question number 110. The innermost meanings which adheres to the surface of the central nervous system is what? अब ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको लेयरिंग से बताया था जस्ट. यू नो, लेयरिंग में से जो सबसे अंदर वाली लेयर थी, तो आई डोंट नो कि अगर अभी आपको याद है या नहीं याद है, बट सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी है? पायामेटर. वेरी गुड. तो मैंने वही कहा ना कि इस लेयरिंग वाले को एक बार पढ़ लेना क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं. Question 111. Which of the following influence perception? Perception कैसे influence होती है? Okay. Come on, come on. So attention, of course, आपने किसी चीज पे ध्यान दिया कि नहीं दिया? Okay. Past experience, of course, perception decides. Now the question arises कि D है कि नहीं है? Yes, D is there. Language defines your perception. It is a part of a culture and that actually defines your perception. So A, B and D is the correct answer. Right? Question 112. Who among the following are the key researchers in motivation theory? Very simple. दो ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं, दो बताने हैं. मोटिवेशन थ्योरी किसने दी थी? बहुत सिंपल है गाइस, जल्दी जल्दी करो. ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बचे हैं, थोड़े से हैं. वील कंप्लीट इट ऑन टाइम. करेक्ट. स्किनर ने तो बिहेवियरिस्ट थे. बैंडिग्रा सोशल साइकोलॉजिस्ट. मैस्लो ने दी थी थ्योरी और एडवर्ड डेसी. रेयान एंड डेसी की थ्योरी अभी मैंने आपको बताई थी. डिटर्मिनेशन वाली थ्योरी मोटिवेशन की है. वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 113. अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. द न्यूरॉन पार्ट्स आर इन द करेक्ट सीक्वेंस. करेक्ट सीक्वेंस में आपको न्यूरॉन्स के पार्ट्स बताने हैं. You can start with initial, you can start with end, and you can find the answer. Guys, you have dendrites like this. First, you have a dendrite, yes. Then you have a cell body, which is this. This is a cell body, right? This is cell body. Then you have axon, which is this. Then you have an end brush. And then at the last, you have the terminal buttons like this, which is in sequence. Very good. Who got this correct? Second option is the correct answer. Okay. एंड ब्रश इज नथिंग कि बस वो जो एंड में जा रहा है, एक्सोन के एंड वाली चीजों को हम एंड ब्रश कहते हैं. देन यू हैव टर्मिनल बटन्स एंड देन यू हैव द वेसिकल्स व्हिच वी हैव. दे आर टॉकिंग टू दैट, राइट? दे हैव जस्ट गिवन अ नेम टू कंफ्यूज यू गाइस. इट्स कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है उसमें. ओके. 114. द फोर ब्रह्मवीर are relevant in the context of workplace relationship. Workplace relationship में ब्रह्मवीर होते हैं. बुद्धिस्ट से क्वेश्चन है फिर से. Which of the following ब्रह्मवीर्स correspond to compassion? Do you know about this? Yeah, this is Karuna. एक्चुअली अगर आपको नहीं भी आता है, फिर भी आपको जितनी हिंदी आती है तो आप इसका आंसर कर सकते हो, बट मैंने यहाँ सारे डाल दिए. यू हैव मैत्री, विच इज लविंग एंड काइंडनेस. करुणा इज कंपैशन, यू फील कंपैशनेट द अदर. Mudita is a sympathetic joy, that you feel happy for others' success. And Upeka is a equanimity, which is maintaining the emotional balance, fairness, and impartiality. Very good, guys.
Question number 115. How many categories of disabilities are mentioned in the Right to Persons with Disability Act 2016? Do you have any idea about this? Very good. Many of you got this right. It is 21. 21 disabilities are categorized. Question number 116. A square root of AVE, which is average variance extracted, can be used to verify dash validity of the psychological questionnaire. Just tell me if you do not know it, because ये थोड़ा नया concept है, थोड़ा डिटेल में पूछा हुआ है इन्होंने. एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड बेसिकली होता है कि कितना वेरिएंस आ रहा है किसी पर्टिकुलर चीज आइटम से ना, कितना वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है. हाउ मच अ वेरिएंस ऑफ द आइटम इज कैप्चर्ड बाय अ कंस्ट्रक्ट कंपेयर्ड टू द एरर इन अ क्वेश्चनर. ठीक है. स्क्वायर रूट ऑफ एवी इज मेनली यूज्ड इन फॉर्नल लैकर क्राइटेरियन. ठीक है. सो इसीलिए हम बेसिकली क्या करते हैं, द स्क्वायर रूट ऑफ एवी ऑफ अ कंस्ट्रक्ट शुड बी ग्रेटर देन इट्स कोरिलेशन विद द अदर कंस्ट्रक्ट्स. Right? If this condition is met, it means the construct is clearly different from other constructs, right? कि इससे इतना वेरिएंस आ रहा है, इससे इतना आ रहा है, so basically defines कि इन दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है, and they are not overlapping. That's why it talks about the discriminant validity. You can give it a read also later on. You can take a screenshot or something. Right? Question number 117. Identify the correct sequence for an action research. Very simple question, very common, though coming in exam again and again. Okay, tell me. Yeah, it's nothing but your plan, act, observe and reflect. Very simple. बहुत common question है, उसमें भी आता है, paper 1 में भी आता है. Question number 118. According to Goddard, studies on residents of the Venland facility and their categorization by diagnosis and mental age, the residents having the mental age of 3 to 7 years are termed as what? ये एक certain study है, जिसने ये पढ़ी है उसको शायद पता होगी, because we have not studied it. So I will tell you इसमें क्या होता है. गॉडेड स्केल के अकॉर्डिंग जिसका 0 to 3 है वो इडियट्स हैं, 3 to 7 वाले इम्बेसिल्स हैं, 7 to 12 वाले फीबल माइंडेड हैं, और उससे थोड़े ऊपर वाले माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन में है. सो दिस इज imbeciles. You can see this. Yes. Yes, guys. Clear? Can you remember it now? Question number 119 का first question है, which of the following combination accurately portrays one phase of Selle's general adaptation syndrome? गैस मॉडल से क्वेश्चन है, वेरी सिंपल. 3 स्टेजेस हैं गैस मॉडल की. यू मस्ट बी नोइंग दैट. आपको बस करेक्ट चूज करना है. क्विक गाइस, क्विक क्विक. सो इफ यू रिमेम्बर, अगर आपने पढ़ा हो, ध्यान से देखा हो, तो अलार्म रिएक्शन के आगे हमेशा लिखा रहता है फाइट या फ्लाइट, क्योंकि उस टाइम पे बॉडी आपका एकदम सिंपैथेटिक ऑन करती है. सो फाइट एंड फ्लाइट शुड बी द अलार्म रिएक्शन स्टेज एंड नथिंग एल्स कैन बी देयर. ठीक है. और इंटरनल एफर्ट्स टू रिस्टोर द होम्योस्टेसिस, दिस इज रेजिस्टेंस. दिस इज करेक्ट. फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट. एग्जॉशन तो भाई एग्जॉस्ट हो गई है बॉडी, अब कुछ नहीं हो सकता. So all these are wrong and first is correct. Is it clear? To achieve the homeostasis maintain होता है resistance stage में. Alarm reaction में तो एकदम हो ना, अभी आप बैठे थे आराम से, कुछ एकदम से चीज होगी कि अच्छा ये हो गया, तो वहां पे आप सोचते हो अभी फाइट करना है इससे या फ्लाइट करना है. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. Question number 120. Arrange these personality assessment tools in a chronological order of their development. Again, a question of chronological development कि कौन से ईयर्स में ये हुआ है.
हाँ हाँ हाँ, वो आप रिसोर्सेज में देखो, रिसोर्सेज जहाँ दे रहे हैं ना, क्योंकि अभी बॉडी ने बहुत सिंपैथेटिक कर लिया, अभी बॉडी चाहती है कि मैं रेजिस्टेंस स्टेज में आ जाऊं, तो रेजिस्टेंस के लिए वो रिसोर्सेज को यहाँ वहां करती है और शांत करने की कोशिश करती है, ठीक है। वरना यूजुअली रिसोर्सेज यहाँ वहां जाते क्यों हैं, वो अलार्म रिएक्शन में ही जाते हैं, बट वो होम्योस्टेसिस के लिए नहीं जाते हैं, वो एक्चुअली आपको सिंपैथेटिक के लिए ही जाते हैं। राइट, राइट। हाँ, तो किसी किसी ने सही दिया, सबसे पहले रॉशार्क टेस्ट, देन एमबीटीआई, देन 16 पीएफ, देन एमएमपीआई, देन नियोपीआई। नियोपीआई तो नया है, आपको ये पता है कि 5 फैक्टर मॉडल सबसे बाद में आया है, इसलिए उसका जो नियोपीआई है वो सबसे बाद में। अगर आप ओसी भी करोगे ना तो भी आप पेपर में आंसर कर सकते हो गाइस, इसे ट्रिक कहते हैं एग्जाम को अटेम्प्ट करने की, ठीक है। अदरवाइज मैंने ईयर्स यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121, अगेन अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग लर्निंग थ्योरीज से है। थॉर्नडीक ने बात करी थी लॉ ऑफ इफेक्ट की, हमने अभी पढ़ा। बीएफ स्किनर ने शेपिंग बताया था कि हम शेप कर सकते हैं बिहेवियर को छोटे छोटे उससे। पावलोव टॉक्ड अबाउट एक्सटिंक्शन ऑफ द बिहेवियर, अगर हम उसे वेरिएबल मतलब ना दें, क्या क्या कहते हैं, अनकंडीशनल स्टिमुलस। और बेंड्यूरा टॉक्ड अबाउट ऑब्जर्वेशन। सेकंड, very good guys. Question number 122, in yoga 3 levels of functioning in chitta are distinguished. Which of the following level represents the principles of individuation? Individuation कौन सा concept है? बहुत सिंपल है ये। बुद्धि का मतलब होता है कॉग्निशन, हायर कॉग्निशन एक्चुअली। हाँ, नहीं गाइस, अहंकार मतलब होता है सेल्फ या इंडिविजुएशन। मानस मतलब भी माइंड होता है, थिंकिंग परसेप्शन होता है। प्रकृति इज, बोलते हैं ना चंचल है प्रकृति, नेचर बिहेवियर। अहंकार इज द वन। यस, द ईगो एंड द सेल्फ, या आई एंड द सेल्फ, तभी तो इंडिविजुएशन है ना, इसमें से और कोई भी मैच नहीं कर रहा है, राइट। ये सिंपल क्वेश्चन है गाइस, देख लो आप, ये गलत नहीं करना पेपर में। क्वेश्चन 123, अरेंज द स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। वेरी सिंपल एक्चुअली, बहुत सिंपल सा दिया उन्होंने। क्विकली टेल मी। हाँ, ऑफ कोर्स, सबसे पहले आप डेटा को कलेक्ट करोगे ना, उसके बाद एनालिसिस करोगे, तो बी शुड बी फर्स्ट एंड सी शुड बी नेक्स्ट टू गेट योर आंसर। सबसे पहले रिव्यू ऑफ लिटरेचर, देन आपने क्वेश्चंस बनाए, एंड देन या। Question number 124, match the following as enumerated in Mimamsa to explain the personality. अच्छा, ये पेपर 1 का भी क्वेश्चन है, मैं आपको बता देती हूँ। पेपर 1 में भी जो इंडियन रीजनिंग या वो है शायद, उसमें भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। और मैंने देखा है लास्ट किसी पेपर में भी आया हुआ है, तो ये दोनों में आने लगे हैं अब। Okay, so see, inference is anuman, analogy is similarity, so it is upma. Implication is arthapatti, and negation means something is not there. Negation, negative, definitely anuplabdhi. So third is the correct option. I have written it here. Inference anuman means gaining knowledge through logical reasoning, like seeing a smoke on a hill and inferring that there must be a fire. Analogy is similar. That means we will compare it, like a guy which is a wild cow by a normal known guy which we have seen. Implication is arthapatti, assuming that must be to explain a situation. A person gains a weight despite not eating during the day. That means the person eats at night. Negation means anuplabdhi. It is not there, it is not there. If I have not seen the book here, that means it is absent from here. पेपर 1 का भी क्वेश्चन है, प्लीज इसे दोबारा से आप कर लीजिएगा।
Question number 125. Arrange the following theories of leadership chronologically in terms of their evolution. Again, a question of chronology. I have to focus on this now. ट्वेंटी क्वेश्चंस आर लेफ्ट, जिसमें से दो तो पैराग्राफ्स ही हैं, तो पैराग्राफ जल्दी हो जाएंगे. Are you tired, guys? You have to give a 3 hour का पेपर. अभी तो मैं पढ़ा रही हूँ, तब आप नहीं बैठ पा रहे हो. खुद से कैसे करोगे? मोनोटोनस नहीं हो जाएगा और ज्यादा ही? चलो ठीक है. देखो, एक्चुअली थोड़ा गेस कर सकते हैं कि ट्रेड थ्योरी सबसे पहले, क्योंकि एल्पोर्ट ने स्टार्ट की थी और बहुत अर्लीली स्टार्ट हुई है. ठीक है. उसके बाद से थोड़ा सा हमने पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था ना कि मिशिगन स्टडीज और ओहियो स्टडीज थी. तो आई थिंक वहां से हम इसका आंसर गेस कर सकते हैं. देन यू हैव ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप वाला. फिर यू हैव व्हाट डू यू हैव? CAD नहीं, यू हैव कंटिंजेंसी थ्योरी जो फीडलर की थी. देन यू हैव ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी एंड देन यू हैव सर्वेंट लीडरशिप थ्योरी. बट आई हैव रिटन हियर, सबके मैंने ईयर्स लिखे हुए हैं. So you can take a screenshot or something and then you can do it. ठीक है. तो 1900s में ट्रेट आया, फिर 40-50 में बिहेवियरल, देन कंटिंजेंसी इन 1670s में ट्रांसफॉर्मेशन एंड सर्वेंट लीडर इज 1970s. और इस पेपर में उनका पब्लिश हुआ था. राइट. क्वेश्चन नंबर 126. It talks about some cognitive components followed by their like concepts connected to them. Even if you get the first one, you get the answer. प्रोसेसिंग स्पीड होती है, सिमेंटिक प्रोसेसिंग स्पीड को बोला गया है कि किस तरह से आपको वर्ड्स का मीनिंग समझ आ रहा है, आप प्रोसेस कर पा रहे हो. तो विच एक्चुअली गिव्स यू द आंसर इन अ वे. अगर आप देखो तो फ्लूइड इंटेलिजेंस आपको पता है आपकी रीजनिंग को बोला जाता है. क्रिस्टलाइज में आप चीजें फैक्ट्स लर्न करके रखते हो, लेकिन फ्लूइड में आप क्या करते हो? आप क्वांटिफाई करते हो. मतलब क्वांटिफाई नहीं करते हो, रीजनिंग करते हो मेजरली. ब्रॉड कॉग्निटिव स्पीडनेस जो है वो परसेप्चुअल स्पीड की बात कर रहे हैं. और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस ऑफ कोर्स स्पेलिंग एबिलिटी, कि आपको कितनी स्पेलिंग याद है. तो अगर आप ये दो भी मैच करते हो ना, फ्लूइड या क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस वाले ऑप्शंस, तो भी आपको आंसर मिल जाएगा इवन इफ यू नॉट अंडरस्टैंड द अदर थिंग. राइट. Question number 127. The ethical guidelines during the test administration does not include what? दो चीजें हैं जो ethical guidelines में नहीं आती हैं. Of course, helping the examinee by answering the question. This is of course not ethical. Maintaining confidentiality? Yes. Favoring the examinee? Of course not. Taking consent? Yes. So, B and D. A and C are not. Not लिखा है ना, तो A and C. Very good. Question number 128. Cooking something by following the directions in a recipe exactly is an example of the use of what? Very simple question. This is very. कि आप किसी के स्टेप से कोई चीज कर रहे हो तो आप उसे क्या बोलते हो? वेरी गुड. दैट इज नोन एज एल्गोरिथम. प्रॉपर स्टेप आप अगर फॉलो करते हो तो. ह्यूरिस्टिक्स क्या है? थंब ऑफ रूल ऑफ थंब. एनालॉजी सिमिलर चीजों को देख के. फंक्शनल स्ट्रैटेजी कि आपने कुछ फंक्शन के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाई है. Question number 29. Origins is related to what aspect of personality? देखो होता क्या है एक्चुअली. ऑरिजिन्स का मतलब यहाँ पे ना, ऑरिजिन्स का मतलब यहाँ पे ओरिजिनलिटी से है. ठीक है. और उसको इन्होंने कनेक्ट किया है क्रिएटिविटी से. आई हैव रिटन द नेम आल्सो कि जॉर्ज वेल्श ने ये टर्म दिया था, which measures the specific dimension of the creative personality, right? Question number 130. How do mind body intervention affect stress? Mind और body का intervention stress को कैसे affect करता है? ये भी बहुत सिंपल है. Even if you do not know anything about it, you can choose the correct answer.
अरे बेटा, माइंड बॉडी इंटरवेंशन से स्ट्रेस इंक्रीज होगा क्या? इंक्रीज द स्ट्रेस? नो ना। हाँ, no, mind body intervention will reduce the physical effects of stress. Very good. This will be the correct answer. Yes. माइंड बॉडी इंटरवेंशन से स्ट्रेस इंक्रीज थोड़ी ना होगा, स्ट्रेस कम होगा ना, रिड्यूस होगा ना। क्वेश्चन 131, ऑर्थोगोनल रोटेशन हम कब करते हैं? ये भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब कोई ऐसे बहुत घुमा फिरा के नहीं दिया, दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। ऑर्थोगोनल रोटेशन कब की जाती है? When the factors are what? वेरी गुड, व्हेन दे आर अनकोरिलेटेड। ऑब्लीक करते हैं जब वो कोरिलेटेड होते हैं, राइट? ये दोनों आपको पता होना चाहिए। 132, once the complex behavior are learned, they can be maintained using different schedules of reinforcement. ठीक है, आपको ये बताना है कि सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स रेट कौन से reinforcement से आता है। मैंने पढ़ाया भी है क्लास में, तो मुझे बताओ आप। गाइस, वेरिएबल स्केड्यूल होगा आंसर इसका, रेशियो स्केड्यूल नहीं हो सकता। अगर आपने रेशियो स्केड्यूल कर दिया कि हर 5 के बाद हो रहा है, तो बीच के 4 में तो वो अच्छे से काम नहीं करेगा ना। वेरिएबल स्केड्यूल है, और सबसे अच्छा वेरिएबल रेशियो होता है ऑफ कोर्स, बट वेरिएबल रेशियो साथ में लिखा नहीं हुआ है, तो यू विल गो विथ वेरिएबल स्केड्यूल। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन 133, डैश इज द यूजफुल इंडेक्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच इज द मिडिल मोस्ट स्कोर व्हेन ऑल द स्कोर्स हैव बीन रैंक्ड। जब हम रैंकिंग करते हैं तो सेंट्रल टेंडेंसी में सबसे मिडिल मोस्ट स्कोर का इस्तेमाल किया जाता है, वो क्या होता है? दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज नॉन पैरामेट्रिक, विच इज स्क्यूड। वेरी गुड, दैट इज मीडियन। अगर कॉन्टिन्यूस होता, पैरामेट्रिक होता, तो हम मीन यूज करते हैं ऑफ कोर्स। Question number 134, arrange the following steps of Sigmund Freud's psychosexual development. Okay, nothing can be more easy than this question as well. इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता है। It's oral, anal, phallic, latency and genital. वेरी गुड गाइस, बहुत आसान है ये, बहुत सिंपल क्वेश्चन में आता है। क्वेश्चन नंबर 35, द क्राइसिस ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड टू एडोलेसेंस में कौन कौन सी चीजें? साइको सोशल मतलब एरिक्सन की स्टेजेस की बात है। चाइल्डहुड से लेकर एडोलेसेंस तक कौन सी आती है? मतलब सिर्फ एक चूज करनी है, जो नहीं आती बाकी सारी आती है। एंड इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू चूज फ्रॉम दिस आल्सो, बिकॉज ऑप्शंस बहुत आसान दिए हैं इन्होंने। जस्ट एलिमिनेट द वन। ये सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो कुछ होता ही नहीं है स्टेज। करेक्ट, ACND, वेरी गुड। इंडस्ट्री, ट्रस्ट से शुरू होता है, फिर इनिशिएटिव, फिर इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन you have some social terms. So see what it will be. Bias होता है बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप के साथ गलत करना, रेशियल, फेथ, सेक्सुअल या होमोफोबिक हैरेसमेंट करना, ठीक है। वर्बल होता है मुंह से टॉन्ट करना या टीज करना, थ्रेटनिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करना। इनडायरेक्ट होता है गॉसिपिंग करना, दूसरे पीयर्स को बोलना कि मत बात करो, उनके बारे में कुछ गंदी गंदी चीजें फैलाना। सोशल एक्सक्लूजन होता है कि उनको इन्वॉल्वमेंट से हटा देना, ठीक है, सिस्टमैटिकली रिमूव कर देना। वेरी गुड, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू गॉट इट राइट। Question number 37, again a very simple question, we have done it a lot of time.
कोरिलेशन के टाइप्स हैं एंड व्हाट काइंड ऑफ वेरिएबल्स दे स्टडी विद दैट. प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन का तो 2 कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है, ये प्रिटी ऑब्वियस है क्योंकि सारे ऑप्शंस में 3 है. यू हैव टू थिंक ऑफ अदर ऑप्शंस. Biserial phi coefficient, point biserial. Remember how we have done it? Biserial में होता है एक कॉन्टिन्यूअस, एक डाइकोटोमस, बट वो आर्टिफिशियल होता है, जबकि पॉइंट बाइसीरियल में एक कॉन्टिन्यूअस और एक ओरिजिनल आइडेंटिटी. और फाई कॉफिशिएंट में दोनों डाइकोटोमस होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं? दोनों नेचुरल डाइकोटोमस है. और टेट्राकोरिक की अगर मैं बात करती हूँ तो उसमें मेरे पास दोनों वेरिएबल आर्टिफिशियली होते हैं. सो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट. वेरी गुड. ये तो एनटीए का फेवरेट क्वेश्चन है. हाँ, कुछ क्वेश्चंस एनटीए बार बार रिपीट करता है, सो दैट्स द ट्रिक. नाउ यू हैव अगेन अ रिसर्च मेथोडोलॉजी का क्वेश्चन. ओके, टेक योर टाइम एंड लेट मी नो. We are left with only 11 questions, so let's just quickly finish it up. I know it's late and you guys are losing patience. डिस्टेंस फ्रॉम मीन इन द स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट्स, ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड स्कोर होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, मैंने मीन लिया और स्टैंडर्ड यूनिट्स लिए, तो उसको हम ऐसे आगे जाते हैं, उसको स्टैंडर्ड स्कोर में हम करते हैं. एसिमेट्री ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कहेंगे, उसे हम स्क्यूनेस कहेंगे. रेशियो ऑफ ट्रू स्कोर वेरिएंस अगर हम टोटल वेरिएंस से करें तो उसे हम रिलायबिलिटी कोफिशिएंट कहते हैं, कि दोनों में कितना रिलेशन है. एनी आउटकम मेजर अगेंस्ट विच अ टेस्ट इज वैलिडेटेड, ये तो कई बार आ चुका है अब, क्राइटेरियन वैलिडिटी. सो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. वेरी गुड. Question number 139. Okay, let's read. In a clothes store, Tarun was deciding about whether to purchase or not a dress. कि मुझे ये खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि वो 4,000 की थी. That point, the salesperson suggested that if he purchased the clothes amounting 5,000, he would get a t-shirt free of cost. इस सिचुएशन में कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल हुआ है? कि इतना ही नहीं, ये भी लो. Of course, that's not all technique. Correct. Question number 140. What are the correct according to Jean Piaget? Jean Piaget के अकॉर्डिंग क्या है? Of course, एक एलिमिनेट करना है तो आप उसके हिसाब से कर दीजिए. हालांकि पियाजे ने भी मोरालिटी के टर्म्स दिए थे, बट एनटीए डिसाइडेड दैट मोरालिटी जस्ट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज इज नॉट व्हाट पियाजे टॉक्ड अबाउट. लॉजिकल थॉट का इमर्जेंस फॉर्मल ऑपरेशन में आता है. एब्स्ट्रैक्शन के साथ रीड करना भी बच्चा सीखता है, आई थिंक, और से कॉन्क्रीट और ऑपरेशनल के बीच में. लर्निंग टू रिप्रेजेंट द वर्ल्ड इंटरनली द पर्सन लर्न. सो ABC इज करेक्ट. डी इन्होंने नहीं दिया है, मतलब अपेरेंटली, बट एक्चुअली पियाजे ने स्टेजेस दिए थे मोरालिटी के, 2 लॉ, ऑटोनॉमस, हेट्रोनॉमस एंड ऑटोनॉमस, राइट? आई होप यू नो दैट, वो पता होना चाहिए आपको, बट एक आपको एलिमिनेट करना है तो यू विल एलिमिनेट द मोरालिटी वन. सो वी आर जस्ट लेफ्ट विथ 2 पैराग्राफ्स. विल क्विकली रीड देम. बहुत आसान है. राहुल, अ 22-year-old यूनिवर्सिटी, 22 साल का एक बच्चा है राहुल, जो यूनिवर्सिटी में डरता है पब्लिक स्पीकिंग से. एज अ चाइल्ड वो एक बार फ्रोज हो गया था स्कूल में, और तब से उसको बहुत डर लगता है पब्लिक स्पीकिंग करने में. His fear became a serious obstacle when he had to give the presentation for his classes. यूनिवर्सिटी में वो प्रेजेंटेशन नहीं दे पाता है, उसके पाम स्वेट हो जाते हैं, हार्ट बीट बढ़ जाती है, माइंड ब्लैंक हो जाता है. फिर उसने काउंसलर से बात करी और उसने धीरे धीरे जो है बताया कि मुझे परफॉर्मेंस एंजाइटी है. उसे एडवाइस किया गया कि वो सिंपल स्टेप करे, जैसे कि पहले मिरर के सामने बात करे, फिर कुछ स्मॉल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स से बात करे. ग्रेजुअली ही प्रोग्रेस टू डिलीवर द शॉर्ट टॉक्स इन द क्लासरूम. ओवर टाइम क्या हुआ, राहुल को कॉन्फिडेंस आ गया और उसको पब्लिक स्पीकिंग में एंजॉयमेंट फाइंड होने लगा. सो ही लर्न टू चैलेंज द नेगेटिव थॉट्स. अब उसने नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करना सीख लिया है, एंड रिप्लेस देम विद द पॉजिटिव सेल्फ टॉक.
ओके, समझ आ गया? थोड़ा सा मैंने रीड कर दिया, बाकी आप कर लो. एज राहुल बिगैन टू एंजॉय स्पीकिंग हिज एक्सपीरियंस रिफ्लेक्ट्स व्हाट. अब उसको मजा आ रहा है करने में, तो उसको वो क्या दिख रहा है ना? ऑफ कोर्स वो रेप्रेशन, रेग्रेशन या लर्न हेल्पलेसनेस तो नहीं दिखा रहा है, वो सेल्फ एफिकेसी दिखा रहा है कि नाउ इफ आई विल ट्राई टू डू समथिंग, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि उसने पॉजिटिव सेल्फ टॉक स्टार्ट कर दिया कि आई विल बी एबल टू डू समथिंग. क्वेश्चन नंबर 142 looks like my story. Okay. The heart racing and sweaty palms Rahul experienced before speaking are the examples of what? Very simple. हाँ, करेक्ट. फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स है एंजाइटी के, क्योंकि फिजिकल चीजें दिखाई दे रही हैं. Then, which physiological theory is most associated with the gradual exposure and the behavioral change? Very simple. Gradual exposure और behavioral change की बात कौन सी theory करती है? Very good. Behaviorism, classical conditioning, systematic desensitization करते हैं ना हम? Very good. Question number 144. Rahul's fear of public speaking can be classified as what? So this is issue. This is glossophobia. Why? Because agoraphobia is a open or crowded places. Yes. Anthropophobia is a social interaction leading to avoidance of others. Glossophobia is fear of public speaking or addressing an audience. And hematophobia is a fear of flood. Now remember all the types of fear, okay? Question number 45. Speaking in front of a mirror by Rahul is an example of which therapy? सिमिलर क्वेश्चन है ऊपर वाले की तरह ही. किस थेरेपी का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे? वेरी गुड. जस्ट लाइक सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, एक्सपोजर थेरेपी, एक्सपोजर हायरार्की बनाई जा रही है कि धीरे धीरे हम ट्राई करेंगे. वेरी गुड. हु गॉट 5 of 5 करेक्ट? हु गॉट 4 ऑल्सो? इट्स अ गुड स्कोर. Now we have the last paragraph for the day. Aisha, a 30-year-old project manager, works in a high-stress environment. Very good, Lochin. Where she makes dozens of decisions every day. By the late afternoon, she often feels mentally exhausted and start making impulsive choices, delaying the decisions altogether. She skip her meals, neglect exercise, and found it harder to concentrate in the task, right? Aisha's supervisor suggested her to meet an organizational psychologist. तो अभी वो मिलने चली गई. Consultation के बाद ये पता लगा that she was experiencing decision fatigue, a condition where cognitive resources are depleted after too many choices. बहुत कुछ करने के बाद अभी energy नहीं बची है. The psychologist helped her apply time management strategies, prioritize self-care, and use chunking to reduce the mental load. She also began practicing mindfulness and meditation to restore her focus. After some months, Aisha reported improved mental clarity, better decision making, and less stress. Okay? Okay. Practicing mindfulness meditation by Aisha helped her improve what? Very simple. Yeah. To focus and emotionally regulate. Skipping meals and lack of exercise contributed to what? खाना नहीं खा रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही थी उसको? यस, रिड्यूस्ड कॉग्निटिव परफॉर्मेंस, क्योंकि पूरे पैराग्राफ में यही बात हुई है कि कॉग्निटिव परफॉर्मेंस रिड्यूस हो रही है. Aisha's difficulty in concentrating is most directly related to the issue of what? Concentration में जो प्रॉब्लम हो रही है उससे डायरेक्टली किससे रिलेटेड है? कॉग्निटिव लोड, क्योंकि इतना ज्यादा हो गया है कॉग्निटिव लोड. As advised by psychologists, chunking strategy helps in what? वेरी गुड. चंकिंग से क्या होता है, हम पार्ट्स को छोटे छोटे मैनेजेबल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं कि ऐसे ऐसे काम हम कर लेंगे. Question number 150. Aisha's changing in work behavior following new strategies represent which of the following learning type? नई स्ट्रैटेजीज सीख ली हैं, वर्क बिहेवियर में चेंज आया है, कौन सा लर्निंग हुआ है?
Just the easiest explanation, guys. Just the easiest explanation. Why vicarious? Where she talked about vicarious learning? We all are talking about cognitive learning, guys. So this is the answer given there. Cognitive learning. Yeah, no trial and error, no vicarious, no classical conditioning. So very good who got this 5 of 5 correct. Fourth is the correct option. Thank you so much for being so patient. Okay. I hope you understood something. Even if you do not, you can always reach out. Okay. Okay, guys. Bye-bye. Take care. Few more sessions like this. At the end of the day, only 4 people are there in the class. Is that so? Okay, guys. Okay. I don't know. I don't have my exam, but I am here. But people who have exam left. Anyways, it was good. I just hope that I'll try to do it before your exams. I'll try to do more sessions. Take care, guys. Good night. Bye bye. It's already very late.